Please start, Joseph. Okay, thank you, dear learner. You are welcome. So, I'm sorry for yesterday. This is all of a sudden I could not make out the plan to take your class. That has been postponed. And day before yesterday, we met for one class about statistics and or statistics. I told you initially it was the mathematical statistics, and due to the passage of time, all the social sciences have started to use the this statistical SPSS. So, as I told you about parametric and non-parametric test in our previous class. So, I told you about t-test. I told you about correlation, and today we are going to start block 2, model 2. And in model 2 also, there are correlation. So I told you in the last class to go for one exercise about the correlation t-test, and you might have performed solved certain questions or statement and calculated t-test and the correlation test. If we discuss about the correlation, linear correlation, biserial correlation, Pearson product movement correlation, Spearman rank difference correlation. So basically, we take two types of correlation. Two methods are there. Number one, Spearman rank difference method, and second one is Pearson product movement method. Spearman rank difference method or the Pearson product movement method, we go for calculation of correlation. Correlation, I told you the difference between t-test and the correlation in my last class. T-test and ANOVA both help you to understand the comparison. Comparison between one variable to another variable, right? Suppose there is a age and weight of body, for example, we have to compare, right? So then this is application of t-test with the help of t-test or the ANOVA. ANOVA बोला मैंने आपको, ANOVA कैपिटल में लिखा जाता है ANOVA, ANOVA, that means analysis of variance, right? कंपैरिजन है, कंपैरिजन में वेरिएशन आता है, कंपैरिजन में वेरिएशन ये आता है, you are better than someone else, A is better than B, B is better than C, C is worse than D, right? So this is a comparison. But further correlation help you to study the degree of relationship. Comparison तो कर लिया दोनों में आपने, right? Comparison करके बता दिया कि कौन सा better है, कौन सा worst है, but कितना, what type of factors helping there to retain retain the relation. और हम इसमें correlation में relation निकालते हैं. रिलेशन निकालने के लिए हमने एक चीज जरूर याद रखनी है, रिलेशन और एसोसिएशन का हमने डिफरेंस जरूर दिमाग में रखना है, राइट? कोरिलेशन में हम जब रिलेशंस निकालते हैं तो किसी भी दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल का हम आपस में एक दूसरे की इंटरेक्शन दिखाते हैं या उनका दोनों का आपस में समन्वय कोरिलेशन दिखाते हैं कि कितना एक दूसरे के साथ वो लोग कोरिलेटेड हैं वेरिएबल्स. सो इसी तरह से हमने स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमने आप लोगों को बोला था कि रैंकिंग करना है. हम रैंकिंग करने के लिए तो आपके पास पैरामीटर्स होंगे, राइट? पैरामीटर्स के बेस पे सपोज एजुकेशन है, एजुकेशन के लॉट ऑफ पैरामीटर, और मैंने आपको चार स्केल बताई थी, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल. होपफुली आपको सब याद होगा, राइट? सो उन स्केल को भी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कि ऑर्डिनल स्केल है तो कौन सा कोरिलेशन लगेगा, नॉमिनल स्केल है तो कौन सा कोरिलेशन लगेगा, राइट? सो उसके बेस पे हम आगे डिस्कस करेंगे आज. और अभी in our this today class about the correlation can be conducted in various restrictions.
the correlation between variable x and variable y, right? So basically we assume there is a continuous variable. The distribution of the continuous variable is, we assuming it is a normal. Continuous variable is a normal one. Homogeneity है variable के अंदर, and linearity relationship is also there for computing of Pearson correlation method. If you would like to apply Pearson product movement method, स्मॉल r इसको एक सिंबल है, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का सिंबल है स्मॉल r, राइट? अगर आपने स्मॉल r अप्लाई करना है दो वेरिएबल के अंदर, x एंड y वेरिएबल है, जो x एंड y वेरिएबल वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होंगे, राइट? आप नोट कर लो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या है, इसका क्वेश्चन पूछ लेना, या मैं आपसे आंसर पूछूंगा क्लास के बाद में, व्हाट आर द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। सो नोट कर लो आप लोग, आई विल आस्क यू अबाउट दिस वन। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई का, एंड होमोजेनिटी अमंग द वेरिएबल होगी, और लीनियर होगा। लीनियर मतलब उनकी एक ही डायरेक्शन में सीक्वेंशियल होगा, वो लीनियर में सीक्वेंशियल होगा, राइट? सो ओनली देन वी अप्लाई दिस पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। लेकिन जब एक या दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशंस में वन नीड टू यूज alternative method of correlation, right? Some of them are Pearson correlation modified or specific kind of data other than Pearson. अगर आप कि लीनियर नहीं है, अगर आप में जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, लीनियर नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उनमें, सो यू कैन गो फॉर अनदर मेथड। अगर ये सारी चीजें हैं, सो देन ओनली वी विल गो फॉर पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ कोरिलेशन is the strength of association within the variables or between the variables. Strength of the association, भाई कितनी association है? Suppose I was referring the example of praise and performance, right? Praise and performance से कितनी strength है, how much they are significantly correlated, and that is to be tested with the help of the correlation. This is the technical meaning of the correlation. जबकि कोरिलेशन इज ए टेक्निकल टर्म। कोरिलेशन और एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, टू थिंग्स, एक मेरा रिलेटिव, एक मेरा एसोसिएट है, दोनों में फर्क है ना, राइट? रिलेटिव कैन नॉट बी एसोसिएट, एसोसिएट कैन नॉट बी रिलेटिव। योर फ्रेंड इज योर एसोसिएट बट योर फ्रेंड इज नॉट योर रिलेटिव, राइट? सिमिलरली कोरिलेशन है, एक रिलेशन डिक्लेयर करता है और वो एसोसिएशन को डिक्लेयर नहीं करता, स्टडी नहीं करता, लेकिन कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन योर एसोसिएशन, राइट? एसोसिएशन इज द पार्ट ऑफ कोरिलेशन, एसोसिएशन इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, रिलेशन may not be the part of association. Am I right? So correlation और association की जैसे मैंने बात कही थी, तो correlation certain values of one variable tend to occur with certain values of the other variable. एक वेरिएबल पे x और y, मैंने दो वेरिएबल बताया आप लोगों को, एक वेरिएबल पे certain amount of values है वहां पे, that amount of values will influence the another variable, that is y, and x and y they are related, associated, for example, not related but they are associated. How much they are associated, so this correlation will help you to study the amount of the values lies on one variable will influence the amount of values lies on the second variable, that is y, and this correlation, this relation is to be studied with the help of the correlation method, and what amount, up to what strength, what capacity they are related to each other. So is in correlation method there is no independent and dependent variable, right? इसमें बाइवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, बाइवेरिएट डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट का। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन मेथड, राइट? देयर इज नो स्टिमुलस एंड रिस्पांस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और द कोरिलेशन। यहाँ पे एक बाइवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करें। बाइवेरिएट मींस पैरेलली वेरिएशंस है दोनों में,
पैरेलली वेरिएशन है दोनों में। फॉर एग्जांपल IQ हाई होना, दैट मींस यू विल बी इंटेलिजेंट। ये बाई वेरिएशन है दोनों में, राइट। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। आप लो इंटेलिजेंट तो ऑटोमेटिकली आप पुअर पढ़ाई में कमजोर हो जाएंगे, हाई इंटेलिजेंट तो पढ़ाई में ऑटोमेटिकली आप तेज हो जाएंगे। तो दोनों ये नहीं है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में जो चेंज होगा वो डिपेंडेंट को इफेक्ट करेगा, राइट। बट यहां पे ऐसा नहीं है, ये देयर इज नो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इन कोरिलेशन। दिस इज ए बाइवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स and the most common correlation coefficient is the Pearson correlation coefficient. Pearson product movement method is the most common correlation method used for the statistical analysis, and it is denoted by your small r. It measures the strength of the linear relations in a sample on a slide scale of -1 to 1. आप कोरिलेशन की जो वैल्यू निकलेगी वो -1 से +1 तक की रहेगी, राइट। तो वेरिएशन बता रहा हूं मैं, यहां पे वेरिएशन किस तरह का चल रहा है। हमारा जो वेरिएशन है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशंस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड स्केल ऑफ -1 to 1 ओनली। यहां पे एक हमारा लीनियर रिलेशनशिप आएगा, और वो लीनियर रिलेशनशिप हमें सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज देगा within the range of, within the scale of -1 to 1 only. This is a +1 and -1। प्लस का हम निशान नहीं लगाते तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है +1 है। -1 to जो हमारा स्केल होगा, वैल्यूज रेंज होगा हमारा ऑन द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, वो -1 से, वो स्पीयरमैन भी सेम होगा, दोनों में, स्पीयरमैन में भी और पियर्सन दोनों में ये रेंज ऑफ वैल्यूज हमारा सेम रहेगा, राइट। But if you are interested in relationship non-normally distributed variable, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हम स्टडी करते हैं। अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड वहां पे काम नहीं करेगा। अब आपने देखना है कि कौन सा कोरिलेशन कहां पे लागू होगा। अगर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, नॉर्मली मींस होमोजीनियस डाटा है आपका, राइट, तो यू गो फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। अगर आपका डाटा raw data is not normally distributed, then you cannot use, then you go for the another the correlations, study the relationship between abnormally distributed data, right। so पियर्सन और स्पीयरमैन के अंदर दोनों में क्या फर्क है, पियर्सन और स्पीयरमैन कोरिलेशन में दोनों में क्या फर्क है। स्पीयरमैन कोरिलेशन एंड पियर्सन में, Pearson is most appropriate for measurement taken from an interval scale. मैंने आपको बोला था ना, ऑर्डिनरी, नॉमिनल, रेशियो और इंटरवल स्केल, मैंने आपको परसों बताया था। यूजुअली पियर्सन कोरिलेशन जो मेथड है इज मोस्ट appropriate to apply on our lean interval scale। ताना तानिया, सबसे पहले अपने माइक को म्यूट करें प्लीज, नहीं तो आपको काउंसलिंग से रिमूव करना पड़ेगा। तानिया, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्द से अपने माइक को म्यूट करें। सो प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। सो अगर पियर्सन इंटरवल स्केल अगर आप यूज, इंटरवल स्केल अगर आपने डाटा कलेक्शन में यूज किया है, राइट, मैंने बताया था कल, आपके कहीं आपने नोट किया होगा तो चारों स्केल निकाल लेना। मैंने चारों के मीनिंग बताए थे, इंटरवल, रेशो, ऑर्डिनल और चार अभी नाम ले रहा था ना, इंटरवल, नॉमिनल, यस नॉमिनल, 4 स्केल बताए थे। अगर आपका डाटा कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इंटरवल स्केल है, देन यू गो फॉर द पियर्सन correlation method. If Spearman is more appropriate for measure taken from the ordinal scale. अगर आपने डाटा ऑर्डिनल स्केल बेस्ड है तो आप स्पीयरमैन मेथड पे जाएंगे।
अगर आपका इंटरवल स्केल बेस्ड आपका डाटा है, you go for Pearson product movement method, right? Both they include such as phi, gamma, candle tau b, and Stewart 2 and this Karner b among other tests. दोनों के साथ साथ और कोरिलेशन मेथड भी हैं, उनके मैं नाम गिनवा रहा हूं. फॉर एग्जांपल phi phi phi, then gamma, then candle apostrophe s tau tau, right? Then Stewart apostrophe s tau c, then Sommer d and the Kramer v. These are the another correlations method also, but usually we apply only two. In your syllabus, maybe candle may be given there, candle tau may be in your syllabus, right? Spearman rank correlation coefficient is technique which can be used to summarize the strength and direction. अब स्पीयरमैन और पियर्सन दोनों स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट इंडिकेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, स्टडी करते हैं. और स्पीयरमैन जो है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड एक डायरेक्शन भी देता है. आपका डायरेक्शन दैट इज जो आपका रिलेशन है वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिवली है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. स्ट्रेंथ तो देता ही देता है कोरिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन स्पीयरमैन स्ट्रेंथ के आगे आपको एक डायरेक्शन भी देता है, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव रिलेशंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव रिलेशंस. द रिजल्ट विल ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1 ओनली. दोनों कोरिलेशन में हमेशा जो रिजल्ट होगा हमारा, दैट विल बी रेंजिंग फ्रॉम -1 to 1 ओनली. दोनों कोरिलेशन. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेजर्स ऑफ कोरिलेशन एंड मेजर ऑफ एसोसिएशन आपको बता चुका हूं. कोरिलेशन और एसोसिएशन में क्या फर्क है? होवेल 2002, होवेल इज ए नेम ऑफ पर्सन, आपकी किताब में भी होगा. 2002 उन्होंने इसको क्लियर किया है कि कोरिलेशन और एसोसिएशन में क्या फर्क है. द सेम डिफरेंस इफ देर आर एसोसिएटेड और रिलेटेड. कोरिलेशन और एसोसिएशन में क्या फर्क है? कोरिलेशन और एसोसिएशन में वही फर्क है जो रिलेशन और एसोसिएशन में फर्क है. मैं बता चुका हूं पहले आप लोग. होवेल 2002 इसको एक डिस्क्राइब किया है, द कोरिलेशंस sort of order between two variables. Correlation is sort of order between two variables, और दोनों में किसी के ऊपर भी कोई वेरिएशन होगा, हायर या लोअर लेवल, राइट? देयर आर टू वेरिएबल्स, उन दोनों वेरिएबल के एक ऑर्डर है, और ऑर्डर में कहीं पे भी मैनिपुलेशन होगा. इफ देयर इज एनी चेंज इन ऑर्डर ऑफ इधर एक्स और इधर वाई साइड, और हाई और लोअर साइड, और क्वांटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे वेरिएशंस होगा डेफिनेटली. फॉर एग्जांपल, आपके जो लेवल ऑफ बैक होपलेसनेस स्केल पे जो स्कोर आए हैं, राइट, और या आपने कोई काम पूरा किया उसके ऊपर जो स्कोर आए हैं, उनकी दोनों की एसोसिएशंस को स्टडी करने के लिए हम प्रॉपरली एक ऑर्डर निकालते हैं कि बैक होपलेसनेस जो स्केल है हमारा, या आपने कोई काम पूरा किया उसमें टाइम टेकन जो है उसके एक सीक्वेंसेस है वहां पे. ये नहीं कि सेम काम को पूरा करने में 4 दिन ले रहा और एक पूरा सेम काम को पूरा करने में 4 मिनट ले रहा. इतना गैप नहीं होगा. एक ऑर्डर है वहां पे, एक सीक्वेंस है वहां पे. कोई 4 मिनट लेगा, कोई 10 मिनट लेगा, कोई 15 मिनट लेगा, मैक्सिमम आधे घंटे की वेरिएशन आएगी वहां पे मैक्सिमम. इट डज नॉट मीन एक आदमी उसी काम को 10 मिनट में कर रहा, दूसरा आदमी उस काम को 10 दिन में कर रहा. नो, ये इन ऑर्डर, लैक ऑफ ऑर्डर है. बट ऑर्डर सब कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा वहां पे, लीनियर ऑर्डर होगा वहां पे. ओनली देन द कोरिलेशन मेथड वी कैन अप्लाई देयर, राइट? फॉर एग्जांपल, एसोसिएशन ऑफ जेंडर. हम एसोसिएशन स्टडी करते हैं जब हमने स्टडी को, एसोसिएशन वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, जब हम जेंडर को स्टडी करते हैं, मेल और फीमेल को स्टडी करते हैं. और फॉर एग्जांपल, आपका और मेरा हम स्टडी करते हैं, मी एंड यू, राइट? जेंडर है, फॉर एग्जांपल मेल एंड मेल बोथ, फीमेल एंड फीमेल बोथ, राइट? बट नॉमिनल वेरिएबल्स है हमारे. नॉमिनल स्केल बोला ना मैंने, नॉमिनल वेरिएबल है जेंडर, इनकम, राइट? और आपका रूरल और अर्बन, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, these are the gender these are the nominal scale, right? और nominal variable, और हर एक का इनका एक ऑर्डर होता है.
एक बीपीएल है ना, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, उसका एक ऑर्डर है, एक लेयर है, एक करीमी लेयर है, उसका एक सीक्वेंस है। उसके करीमी लेयर से ऊपर जाने वाले सारे रिच माने जाते हैं, करीमी लेयर से नीचे आने वाले या बीपीएल से नीचे आने वाले सारे गरीब माने जाते हैं। तो एक ऑर्डर हो गया ना वहां पे, राइट? ऑर्डर है अमीरी गरीबी में, मेल और फीमेल, उसका भी एक ऑर्डर है, कौन मेल है कौन फीमेल है, वो पैरामीटर फिक्स्ड है। अमीरी गरीबी के पैरामीटर फिक्स है, वो ऑर्डर है वहां पे। सो कोरिलेशन इज टू बी अप्लाइड व्हेन देयर इज एन ऑर्डर, राइट? सो एक आपके कोरिलेशन में एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन। स्मॉल आर, कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल पी और कैपिटल बी से इसको इंडिकेट करते हैं। पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन, इसको स्मॉल आर, कैपिटल पी फॉर पुलिस, कैपिटल बी फॉर बॉम्बे, इसके नाम से ये इसका एक सिंबल है, पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन। The point of biserial coefficient correlation is a correlation which measures the strength of association between continuous level variables. Continuous, that means ratio और interval scale जहां पे हमारी होगी, वहां पे हम point of biserial correlation हम कैलकुलेट करते हैं। point of biserial correlation, biserial है, biserial समझ के चलो आप, एक है तो दूसरा है, नहीं है तो ऑटोमेटिकली दूसरा खत्म है पहला खत्म, बाई सीरियल है। दैट मीन्स जहां पे हमारा रेशियो और इंटरवल स्केल होगा, वहां पे हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए वेरिएबल्स में, एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तो डाटा बेस्ड विल बी ऑन रेशियो एंड इंटरवल स्केल, और उन एक्स एंड वाई वेरिएबल का स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन निकालने के लिए वी कैलकुलेट पॉइंट ऑफ बाई सीरियल कोरिलेशन। बाइनरी वेरिएबल भी है वहां पे हमारा। बाइनरी वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स नॉमिनल स्केल विद ओनली 2 वैल्यूज। बाइनरी है ना, बाई एनुअल है तो 2 होता साल में, बाइनरी है ये, तो 2 चीजें वहां पे हमारा। बाइनरी वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स ऑफ नॉमिनल स्केल विद ओनली 2 वैल्यूज। नॉमिनल स्केल पे जैसे जेंडर है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, मेल और फीमेल। इनकम है, यहाँ पे 2 वैल्यू है हमारी, अमीरी और गरीबी, राइट? इसी तरह से हमारा ज्योग्राफिकल है, अर्बन और रूरल, यहाँ पे 2 वैल्यू है हमारी। नॉमिनल है, सो नॉमिनल में हमारा, नॉमिनल स्केल में, सो बाइनरी वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स और नॉमिनल स्केल्स विद ओनली 2 वैल्यूज। मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम बाद में बात करें। नाउ इफ वी वांट टू कोरिलेट दीज वेरिएबल, देन अप्लाइंग पियर्सन फॉर्मूला, पियर्सन रैंक, स्पीयरमैन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, पियर्सन रैंक डिफरेंस मेथड, इनके नाम से आप रट्टा मार लो, ये कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोडक्ट मूवमेंट कौन सा और रैंक वाला कौन सा है। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड है, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है। अगर हम अब इसके कोरिलेट को स्टडी करना चाहेंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं पियर्सन फार्मूला। हाँ, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यहां पे हम अप्लाई कर सकते, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या रहा है, कॉन्टिन्यूटी की कमी है वहां पे। पियर्सन कोरिलेशन रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, यहां पे हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल जेंडर एक हमारी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है हमारा, मेल और फीमेल उसके आगे खत्म है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूटी है हमारा, इंटेलिजेंस एक कॉन्टिन्यूटी है हमारा, डिप्रेशन इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, होपलेसनेस कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, राइट? उसका कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे में मिलेगा, राइट? इट डज नॉट मीन कि हम बिल्कुल जीरो लेवल पे। जेंडर मेल के बाद तो हम जीरो लेवल पे चले जाते हैं, मेल और फीमेल के बाद आगे कॉन्टिन्यूस कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में थर्ड जेंडर भी ले लो, फॉर मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, राइट? उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप बताना चाह रहा हूं, इन एडिशन टू योर टॉपिक, उस पर भी ये आ गया, इफ वी आर द थर्ड जेंडर, राइट? ट्रांसजेंडर का नाम दे रहा हूं यहाँ पे, इफ आर द थर्ड जेंडर, वो इज द फर्स्ट एंड वो इज द सेकंड जेंडर, ना तो मेल फर्स्ट है ना फीमेल सेकंड है, ना फीमेल सेकंड है ना मेल फर्स्ट है, राइट? सो दीज आर नॉट ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जब आप पियर्सन कोरिलेशन मेथड यूज करेंगे, वहां पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स का होना बहुत जरूरी है। और ये जो नॉमिनल स्केल है आपका, नॉमिनल स्केल में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स नहीं आते आपके। एक मेल और फीमेल के बाद कॉन्टिन्यूटी क्या है हमारी वहां, राइट? लेकिन इंटेलिजेंस की कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी, इंटेलिजेंस जीरो नहीं होगी, होपलेसनेस जीरो नहीं होगा, राइट? सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो
continuous variable है, only then we go for the Pearson product movement method. Right now dichotomous variable is the one. यहाँ पे एक थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ, dichotomous बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपकी, सॉरी, यू कैन प्रोनाउंस एट योर ओन लेवल. सो dichotomous variable, DICHOTOMOUS, is that one that can be divided into two sharply differentiated or mutually exclusive categories. राइट तो डायटोमस वेरिएबल को हम डिवाइड कर सकते हैं क्लियर कट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो कैटेगरीज में. फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, ये डायटोमस वेरिएबल भी हमारा, राइट, और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है बट डायटोमस वेरिएबल है. डायटोमस वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम बहुत शार्पली, बहुत क्लियर कटली और बहुत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव, अमीर और गरीब, बीच में कुछ भी नहीं है. मेल और फीमेल, बीच में कुछ भी नहीं है. अब तो ट्रांसफर मैं बताऊं, थर्ड जेंडर आ गया, वो मेल फीमेल के बाद बीच में नहीं है. राइट. सो रूरल और अर्बन, बीच में कुछ भी नहीं है. इंडियन और अमेरिकन, बीच में कुछ भी नहीं है. राइट. सो वेरी शार्पली वी कैन डिफरेंशिएट और म्यूचुअली exclusive categories are called the dichotomous variables. Yeah, these are the examples. So, for example, diagnosed with illness, right, and not diagnosed with illness. Experimental और control group. बीमारी के जब हम डायग्नोस करते हैं, हमें बुखार मिलेगा तो 101 होगा तो हम काउंट करेंगे. अब बीमार हो रहे हैं 100 तक तो नॉर्मल मान, 99 100 तो नॉर्मल मान लेते हैं ना. वहां पे बिल्कुल क्लियर कट एक्सक्लूसिवली कैटेगरीज बन जाती है, हाई फीवर और लो फीवर. राइट. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, क्लियर कट कैटेगरीज है हमारी वहां. सो दीज आर दी कॉल्ड डायटोमस वेरिएबल्स. सो हम अब पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. मैं आपको नॉमिनल स्केल के साथ साथ एक डायटोमस वेरिएबल का भी नाम बताया, याद रखना इसको प्लीज. राइट. सो हम पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज आपके सामने 20 सब्जेक्ट का एक डाटा है, 9 उसमें से मेल और 11 उसमें से फीमेल, एंड वी वांट टू कोरिलेट मार्क्स. उनके नंबर को हम कोरिलेट करना चाह रहे हैं द फाइनल एग्जामिनेशन विद जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट. हमारे पास 20 सब्जेक्ट, मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं उनको पर्टिकुलरली हम कोरिलेट करना चाहते हैं. द मार्क्स ऑब्टेन इन फाइनल एग्जामिनेशन आर ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. कॉन्टिन्यूअस है ना, किसी के 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 90 92 93 99 100 ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में आ गया. राइट. किसी को डिप्रेशन है, 10 ग्राम 50 ग्राम 20 ग्राम, राइट, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ना. राइट. सो दीज आर दी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. सो नॉन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हमारे जेंडर आ जाता है, मेरी गरीबी. मैं फिर रिपीट करूंगा. सो द मार्क्स ऑफ द एग्जाम आर ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. 2%, 10%, 50%, 60%, दीज आर द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. राइट. The marks obtained in the final examination are the continuous variable, whereas gender is the dichotomous variable. अब continuous variable और dichotomous variable में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. Am I right? So dichotomous जो वेरिएबल उसको हम क्लियर कट हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि 10% है उसके बाद सीधा 50% पे जाएगा. नो, बीच का तो गायब कर नहीं कर सकते अपना परसेंटेज. राइट. 80% के बाद सीधा आप 90% पे ले जाओगे. 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां गए. दिस आर द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. राइट. सो वेरिएशन, को वेरिएशन जब आप काउंट करते हैं, एंड को वेरिएशन बाय अ पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन में को वेरिएशन जब काउंट करते हैं, दिस टोटल वेरिएशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज. और उसको हम लिखते कैसे हैं, कैपिटल COV कोवेरिएंस हम बता रहा हूं. कैपिटल COV ब्रैकेट कैपिटल X कॉमा Y. कोवेरिएशन को हम कैपिटल X और कैपिटल Y के नाम से हम इंडिकेट करते हैं.
covariation between the variables x and y, right? Sigma x, that means the standard deviation of x variable, and sigma y, that is the standard deviation of the variable y, right? कोवेरियंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोवेरिएशन का जो फार्मूला मैं बता रहा हूं, आपकी शायद किताब में भी दिया होगा, सी कैपिटल ओ बी, कोवेरियंस को हमने शॉर्ट में लिख दिया सी ओ बी। कोवेरियंस एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हमारे, कोवेरियंस दोनों में कोवेरियंस होता है। कोवेरियंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्या है कोवेरियंस? एक तो वेरियंस है, दैट इज ए वेरिएशन, एक कोवेरिएशन आपको याद रखना, आपने मुझे बताना है। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कोवेरिएशंस क्या होता है। यू आर टू लेट मी नो आफ्टर माय टॉपिक व्हाट इज कोवेरिएशन। मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल टॉपिक आपको पता होना चाहिए। सो फॉर्मूला ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन का, पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन का मैं फार्मूला बता रहा हूं। कोवेरियंस सी कैपिटल ओ वी ब्रैकेट कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट शुरू कैपिटल x1 माइनस x अंडर रूट, देन ब्रैकेट क्लोज y1 and y under root divided by n. That means x1 the value of x variable, y the value of y variable, and x average, that is the mean of the x variable, y average the mean of the y variable, and the number of the data point. यहाँ पे डाटा पॉइंट आपका 20 है, n 20 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आपके 20 सब्जेक्ट थे ना, 9 मेल और 11 फीमेल, तो n यहाँ पे 20 हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के वेरिएंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोवेरियंस आप निकाल रहे हैं और उसमें कोवेरियंस में ऑटोमेटिकली वेरिएशन है, तो को एक्सिस्टिंग, एनीवे सॉरी, आप अपने आप जवाब देंगे, इसका मैं नहीं बता रहा हूं। सो पॉजिटिव कोवेरियंस इंडिकेटिंग two variables tend to move in the same direction, that is a positive covariance, same direction में। और नेगेटिव कोवेरियंस वेरिएशन जो है, नेगेटिव कोवेरियंस revealed that two variables tend to move in inverse direction, सेम डायरेक्शन में जा रहे तो पॉजिटिव कोवेरियंस, और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे तो नेगेटिव कोवेरियंस, राइट। इसके बाद बाइसीरियल कोरिलेशन। So the biserial correlation is a correlation coefficient between two continuous variable. Biserial, serial wise है, दो चीजें हैं, that is x and y. Continuous variable x and y, right? Correlation coefficient between two continuous variable. Continuous variable मैंने आपको बताया था ना, क्या continuous variable होता है? नंबर, एग्जाम के नंबर is a continuous variable, right? Biserial correlation जो है आपका, the correlation coefficient between two continuous variable x and y, out of which one is measured the dichotomy. The formula is very similar to the point biserial but yet different. जो point biserial का था फार्मूला, वैसे biserial point of biserial correlation and the biserial correlations का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे r small b is equal to y1 y sigma, then sy, then p sigma p1, then your f, yes, r, oy and 1 y are the y score of the data pair with an x score of 0 and 1 respectively. Then P0 and P1 are the proportion of data pairs with scores of 0 and 1. 0y and 1y जो है आपका, वो तो जो y score means of data pair with on x score of 0 and 1 respectively. P0 and P1 are the proportion of data pair with x score of 0 and 1. Height of the standard normal distribution at the point which divide the proportion of P0 and P1. Proportionally हमने डिवाइड करना है P0 और P1 को बाइसीरियल में,
Now tetrachoric correlation, tetrachoric correlation, tetrachoric, tetrachoric correlation. Tetrachoric correlation is a correlation between two dichotomous variables that have underlying continuous distribution. Tetrachoric, right? Two dichotomous variables हैं x and y, right? उसके बेस पे हमारी आगे वैल्यू 0 और 1 है, राइट? सो टोटल जो x और y का लिगाएंड 0 जो वैल्यू है, 0 में a, मैं आपके पास ये कैलकुलेट नहीं करके दिखा पा रहा हूं यहाँ पे। टेट्रा एक टेबल होती है, उसमें कंसीडर 2/2 कॉन्टिजेंसी है, उसमें 2/2 मींस x एंड y दो हो गए, राइट? x एंड y का स्कोर 1 हो गया, 0 हो गई, 2/2। और 2/2 0 और 1 पे x एंड y के कितने स्कोर आते हैं? 0 x के कितने आते हैं और 1 y के कितने आते हैं, राइट? वो हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद टोटल निकाला। टोटल निकालने के बाद हमने उसके बाद इसका एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, COOS, कैपिटल है ये, COOS, टेट्राकोरिक कोरिलेशन का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। द टेट्राकोरिक कोरिलेशन coefficient is given with the help of the following equation or formula, that means C capital O capital S ब्रैकेट शुरू 180, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 180 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सिग्मा BC ओवर A और D। ये आपका जो फॉर्मूला है वो आपका टेट्राकोरिक कोरिलेशन निकालने के लिए हम करते हैं। और टेट्राकोरिक कोरिलेशन का जो सिंबल है स्मॉल r, उसके नीचे स्मॉल t है, स्मॉल r उसके नीचे स्मॉल t है, और उसके नीचे दो इक्वल के मार्क्स है, वन इक्वल मार्क्स, राइट? दिस इज द सिंबल ऑफ टेट्राकोरिक कोरिलेशन। टेट्राकोरिक कोरिलेशन का सिंबल बता रहा हूं, स्मॉल r उसके नीचे स्मॉल t एंड देन इज इक्वल टू, राइट? नीचे इक्वल टू है, सामने नहीं है, नीचे दोनों के r, स्मॉल r और स्मॉल t के नीचे इक्वल टू है, इक्वल सिंबल। एंड C कैपिटल O कैपिटल S ब्रैकेट शुरू cos, COS cos 180 इज स्टैंडर्ड वैल्यू, हर जगह आएगा 180, इट इज ए गिवन वैल्यू, राइट? एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट BC एंड डिवाइडेड बाय AD। BC को AD से डिवाइड करेंगे, उस वैल्यू के फिर आप रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद 1 में उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 180 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी आपकी वो आपका टेट्राकोरिक कोरिलेशन की वैल्यू आएगी, राइट? डॉक्टर साहब ये फॉर्मूले हैं वो हमारी इग्नू की बुक्स में किसी उसमें पेज पे हैं क्या? हाँ, पेज पे हैं। डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मेरे को बताएं, मैं हो सकता है कि उनको डिस्प्ले कर दूं। पेज नंबर है 31, पेज नंबर निकालो कोवेरिएंस का। कौन से यूनिट में होंगे सर? मॉड्यूल 2 में पेज नंबर 31। सर ब्लॉक कौन सा होगा? 6 का? मॉड्यूल 2 का पेज नंबर 31 है। का पेज नंबर जो PDF फाइल पे पेज नंबर 31 है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है सर, ओके, प्लीज कंटिन्यू आप। ओके। सो यहाँ पे जो है हमारा जो एग्जांपल है, x और y दिया है, राइट? सो x और y की वैल्यू 1 और 0 दी है। 0 वैल्यू एक, जो 0 वैल्यू एक की जो है, एक आया है 9 बार और 0 आई 13 टाइम 0, राइट? और 1 आया है 15 टाइम x पे और 0 आई x पे 10 टाइम। now y और x पे 0 और 1 कितनी बार आए हैं वो हमने कैलकुलेट करना है। इसमें वर्टिकली हमारे 1 2 3 4 कॉलम है और हॉरिजॉन्टली 4 कॉलम है, वर्टिकली हमारे 1 2 3 4 कॉलम, राइट? x ऑब्लिक y 1 और 0, x 1 पे और x 0 पे कितने स्कोर आए? 1 पे और y 0 पे कितने स्कोर आए हैं? सो x और y के हमारे टोटल जो 0 और 1 पे स्कोर आए वो आए 22 एंड 25। 22 एंड 25 जो टोटल आया है, 22 एंड जो टोटल आएगा दैट इज 47।
आप इसको वर्टिकली काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे तो आपका 27 ही आएगा, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला में आपने फिट करना है RT स्मॉल RT इक्वल टू COOS 180 डिवाइडेड बाय 1 प्लस BC over AD अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू COS 180। अब आपका BC ओवर AD में आप जाइए, आप BC और AD का जो आपका जो स्कोर आया है दैट इज 1.47 प्लस 1 ये आपका 2.47 हो जाएगा। 2.47 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा COOS इज सॉरी सर, इंटरप्ट करने के लिए। सर पेज नंबर 31 फॉर बुक 2 इज बेसिरियल कोरिलेशन। सर आप वही बता रहे हैं? नहीं, अब तो मैं टेट्राकोरिक पे आ रहा हूँ। सर आई गेस हमारे बुक में थोड़ा डिफरेंट है। आपके बुक में सर टेट्राकोरिक भी दिया हुआ, याद करो, पढ़ो उसको आप। डिफरेंट नहीं है, टेट्राकोरिक भी बुक में लिखा हुआ है, बाइसीरियल भी बुक में लिखा हुआ है, और आपका पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन बुक में लिखा हुआ, पढ़िए आप। सर हमारी बुक में वो पेज नंबर 35 पर है, 35 पर है वो हमारी बुक में, जो हमारे पास बुक 34 35 यस सर सर 34 35 यस सर। लेट मी ओपन योर बुक भाई, रुकिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अरे नहीं, मेरे को एक बार आपकी पेज निकालने दो। मैंने पैरेलली आपकी बुक भी कंसल्ट किया है, एंड पैरेलली आई हैव अनदर मटेरियल आल्सो, आई कंसल्टेड दैट आल्सो। सो पेपर 6 ब्लॉक 2 मॉड्यूल 2, am I right? It is product movement method correlation. आप करें। हेलो यस सर। पनीति जिंदल जी। सर मैंने स्क्रीन पे डाला है इसको, सर स्क्रीन पे डाला है मैंने। लेट मी चेक भाई। आप लोग प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए, अपनी तरफ से प्रयास किया जा रहा है यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। या विदाउट प्रेजेंटेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब फॉर्मूला ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जा रहा, मैं तो पहले पढ़ के आई ना। फिर आप स्टैटिस्टिक्स मैं आपको थ्योरेटिकली कर रहा हूं, वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट। आप पढ़िए एंड देन वी सोल्व द इक्वेशंस देयर। मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, आई जस्ट टेलिंग यू द टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि टेक्निकली हम कहाँ चलते हैं, क्या क्या करना हमने, कहाँ पे हमने स्पीड में रैंक डिफरेंस मेथड लगाना है, कहाँ पे हमने पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड लगाना हमने। टेक्निकली आई एम टेलिंग यू ऑर्डिनल स्केल होगा तो क्या लगेगा, राइट। ये चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये टेक्निकली आपको साउंड करती हैं। आपको इक्वेशन आपके पास सामने दिया होगा, फार्मूला तो रट्टा मार के आपने लगाना, लेकिन पता चलना चाहिए कि आपको कौन सी चीजें कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, पियर्सन कहाँ कैलकुलेट करना है। ये रहा आपका पेज 34 पे टेट्राकोरिक कोरिलेशन लिखा हुआ है, देखिए आपके बुक में है 34 टेट्राकोरिक कोरिलेशन लिखा हुआ है। परनीति आप अपनी प्रेजेंटेशन बंद कर दें प्लीज। परनीति जिंदल। माय डियर लर्नर, चेक योर पेज नंबर 34, टेट्राकोरिक कोरिलेशन है यहाँ पे। एंड 5 कोएफिशिएंट PHI यहाँ पे है पेज नंबर 32 पे, राइट। और जो मैं बता रहा था वो पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है, जो अभी कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल r PB दैट इज पॉइंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन, पेज नंबर 31 पे मैंने दिया था। चेक करिए आप वो है या नहीं है। आप कह रहे 35 पे है। हेलो Parnidhi ji, you are telling me it is in 35, it is in 31 page. Point of biserial correlation. Calculation of small r, then P and B. I told you this is a point of PB biserial. R means correlation. Point of biserial correlation, RPB. ये इसका सिंबल है RPB। ये पेज नंबर 31 बोला था, 31 पे है, मैं पढ़ चुका हूं सारा पहले। ये जी सर मिल गया सर हम लोग को, जी सर मिल गया सर। 35 पे तो टेट्राकोरिक है। हाँ जी सर। और आप कह रहे आपकी बुक में डिफरेंट जा रहा है टोटली। आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू योर बुक ओनली। आई एम जस्ट एडिंग माय नॉलेज इन योर बुक in addition yes, to sir, the yes, content sir. In addition to the content given in your book, I am going in addition to that.
Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. तो आप मेरी गुजारिश है, नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज ए टोटली मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स कैन नॉट बी ऑनलाइन। तो मेरी पिछली बार भी कहा था आप कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो रादर आई एम गोइंग इन, मैं आपको एक टेक्निकलिटीज बता रहा हूं, व्हाट इज योर ऑर्डिनल नॉमिनल रेशो और इंटरवल स्केल एंड विच स्केल इज टू बी एप्लीकेबल फॉर विच कोरिलेशन मेथड। फॉर एग्जांपल, हम टी टेस्ट क्यों लगाते हैं, हम अनोवा क्यों लगाते हैं, हम कोरिलेशन क्यों लगाते हैं। मैंने बोला था पहले लेक्चर में, आपके जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपका पेपर 5 पास होना प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी क्यों किया हुआ है, इसलिए कंपलसरी किया हुआ, पेपर 5 और 6 में रिसर्च मेथोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स होती है, और प्रोजेक्ट में रिसर्च मेथोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ही काम होता है सारा। जब तक आपको पेपर 5-6 का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, यू कैनॉट गो फॉर योर प्रोजेक्ट। सो मैंने बोला था कल, द टाइटल ऑफ योर सिनॉप्सिस, द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट विल ऑटोमेटिकली रिवीलिंग कि इस टाइटल में कौन सा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन लगेगा, कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगेगा, टाइटल अपने आप में बता दे। रिग्रेशन लगाना तो टाइटल में प्रेडिक्शन की स्टेटमेंट होना चाहिए, कोरिलेशन लगाना है तो रिलेशन स्टडी करने की स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर कंपेयर करना तो टी और अनोवा होना चाहिए वहां। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सारी टेक्निकलिटीज, और इन टेक्निकलिटीज के बेस पे ही आप लोग आगे चलेंगे। सो अदरवाइज डायरेक्टली स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड बहुत आसान है, मैं आपको 2 मिनट में निकाल के दिखाता हूं। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, आप एक वैल्यू लिखिए फटाफट, आप कागज पेन निकालिए, टेक 1 एक्सरसाइज। Yes, sir. यस, यू राइट एक्स एंड वाई, 2 कॉलम बनाए आप, एक्स एंड वाई। एक्स में लिखो एज, वाई में लिखो लर्निंग। am I right? उधर से सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट 1 to 7, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सब्जेक्ट 1 की कोई हाइपोथेटिकल एज लिखो, सब्जेक्ट 2 की हाइपोथेटिकल एज, और सबकी हाइपोथेटिकल एज लिखो, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सिक्वेंशियल है, कॉन्टिन्यूअस है ना एज हमारा, जेंडर हमारा डिक्टोमस वेरिएबल है, एज हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, बता चुका हूं ये मैं आपको। लर्निंग, एज और लर्निंग है ना, एज के अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग वैल्यू घटती है ना। आप सपोज 50 साल के तो आपकी लर्निंग हाईएस्ट होगी, 55 के तो उसके आगे लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, 60 में और कम हो जाएगी, 80 में बिल्कुल कम हो जाएगी। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, आपका एज इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, राइट। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एज इज हाई, यू आर सो मच सीनियर, राइट। नंबर ऑफ लर्निंग इज लो, दैट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग योर लर्निंग कैपेसिटी एज के अकॉर्डिंग। अपोजिट आ रहा ना एक्स और वाई की वैल्यू। अब एक्स और वाई के आगे लिखिए, एक्स का नाम है एज, वाई का नाम है लर्निंग, इसके आगे लिखो डी। R1 और R2, पहले लिखेंगे आप रैंक 1 और रैंक 2, पहले एक्स फिर वाई फिर R1 फिर R2। R1 मीन्स एक्स, R2 मीन्स वाई। R1 और R2 का डिफरेंस निकालेंगे आप, R1 और R2 का डिफरेंस निकालेंगे आप, D R2 माइनस R1, फिर डी स्क्वायर निकालेंगे आप आगे। और जो फार्मूला है इसको हम रो बोलते हैं, RHO, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस के फॉर्मूले को रो RHO बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, फार्मूला बता रहा हूं, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर ओवर या डिवाइडेड बाई कैपिटल N ब्रैकेट पे M स्क्वायर माइनस 1। अब आपके सामने इसको 1 इज स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे वहां पे 180 था ना, यहाँ पे 1 एक आपका गिवन वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, राइट। 6 इज स्टैंडर्ड वैल्यू, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, जो आपने डी निकाला था ना, डी के बाद डी स्क्वायर किया था, डी स्क्वायर का टोटल करेंगे तो नीचे सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। पहले आपने एक एक्स और वाई लिया, उन दोनों में R1 और R2 निकाला, रैंक 1 और रैंक 2 निकाला, रैंकिंग दी ना आपने,
रैंक 1 जो सीनियर आदमी है एज के अकॉर्डिंग उसको नंबर 1 देंगे एज में, राइट। जो यंग आदमी है उसको नंबर 1 और जितना बुजुर्ग होता जाएगा उसका लास्ट नंबर मिल गया। इसी तरह लर्निंग में जो हाईएस्ट स्कोर है उसको नंबर 1, मिनिमम स्कोर को लास्ट नंबर दे दिया। R1 और R2 आ गया ना, रैंकिंग करनी है आपने। R1 और R2 के जो 122 स्कोर दिया है उस स्कोर के बेस पे आपने रैंक 1 और रैंक 2 निकालना है। रैंक 1 मींस 50 साल का रैंकिंग नंबर 1 पे सबसे जवान है, 55 साल का रैंक 2 पे आता है उससे कम जवान है, देन 60 साल का रैंक 2 पे आता है उससे कम जवान है। रैंकिंग निकाल दी हमने। इसी तरह लर्निंग की रैंकिंग निकाला। 115 साल का बच्चा जो आज 50 साल के बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी आई वो 115 स्कोर ले रहा है, दैट मीन दी हाईएस्ट इंटेलिजेंट है वो। 55 साल का जो आदमी है वो 100 स्कोर ले रहा है, दैट मीन सेकंड नंबर पे आता है, वो सेकंड रैंक आ गया। इसी तरह से 60 साल का जो बंदा है उसके 90 स्कोर आए वो थर्ड रैंक पे आ गया, R2 थर्ड आ गया। R2 के सामने 3 लिखेंगे R2 के कॉलम में और आपका लर्निंग के सामने। उसके बाद 90 के बाद 70 स्कोर आ गया लर्निंग का। 70 स्कोर हमारी 65 एज में जाके होता है। 65 वाला जो बंदा है वो आपका 4 नंबर पे आया था R1 में, और यहाँ पे Y में भी 4 कौन से नंबर पे 4 नंबर पे आ रहा है, राइट। आपने रैंक 1 और रैंक 2 निकाला, फिर R1 और R2 का माइनस करना है। R2 माइनस R1 वो डिफरेंस आएगा। डी मींस डिफरेंस बिटवीन R2 एंड R1। रैंक 2 और रैंक 1 में क्या फर्क है? जो रैंक 1 की वैल्यू आई है 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज, उसमें से माइनस करेंगे आपका डी आ जाएगा। डी मींस द डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 2 एंड रैंक 1। और जो डी आया है उसका आप स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर आ जाएगा। डी की जो वैल्यू आई है सब्जेक्ट वाइज उसको स्क्वायर करते जाएंगे, और स्क्वायर वैल्यू को डी स्क्वायर के अंदर जब नीचे टोटल करेंगे उसका सिग्मा डी स्क्वायर वैल्यू आएगी। आप पेन से करेंगे तो बहुत आसान है, 2 मिनट में सवाल निकल जाता है। Sir, can you please repeat RHO formula? इसका जो फार्मूला है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, उल्टा ई लिखते हैं उसका सिग्मा लिखते हैं, उसको सिग्मा बोलते हैं हम, उल्टा ई। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. हम सिग्मा जो लिखते हैं ई को उल्टा कर दो आप, उसको सिग्मा बोलते हैं। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर ओवर या डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन मींस नंबर। टोटल नंबर कितने बने थे आपके? वो 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे, 7। तो कैपिटल एन 7 आ गया आपका, राइट। एन स्क्वायर माइनस 1, 7 to 7 49 माइनस 1, एन स्क्वायर होगा ना यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में। Yes, sir. एन स्क्वायर जो आया 7 ब्रैकेट में 7 into 7 49 माइनस 1, देन 48 into 7 आ गया नीचे। Am I right? Yes, sir. समझ आ रहा है ना? जी सिग्मा सर। डी की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आपका 48 को सिग्मा डी की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 8 के साथ माइनस करेंगे, 1 के साथ माइनस करेंगे, एंड दिस वैल्यू विल नॉट बी एक्सीड -1 से 1 से बीच में आएगी, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर -1 या 1 के बीच में नहीं आती तो आपकी कैलकुलेशन खराब है। मैंने बोला पियरमैन और पियर्सन का जो आंसर आएगा 7 8 9 10 104। एक और मैं आपको बताता हूँ एक प्रॉब्लम, जहां पे अगर टाई हो जाती है, मान लो 7 लोग हैं, छठे और 7वें के स्कोर बराबर आ गए लर्निंग के, तो आप क्या करेंगे? रैंकिंग टाई हो गया ना वहां पे, राइट। जब आप टाई हो जाते तो क्या करेंगे आप तो इसमें सेम रैंक देंगे दोनों को? नो 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 नो, सेम रैंक नहीं देंगे, नो। लेकिन हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे रैंक डिफरेंस मेथड के साथ भी, लेकिन एक स्टैटिस्टिकल मेथड दिया आपके सिलेबस में, कैंडल्स टाउ TAU CKENDALL, कैंडल अपोस्ट्रोफी कैंडल्स टाउ TAU, इसको ताऊ बोलेंगे, राइट। formula, this is also a formula of correlation, KENDALL apostrophe S candle tau TAU
कैंडल टो टाउ बोलेंगे आप। इसका फार्मूला जहाँ पे टाई आएगी वहां पे फार्मूला ये लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे नंबर वाइज। जो बंदा है आए हैं और वो बंदे जो फाल एग्जिस्ट करता है चौथे और पांचवें नंबर पर। एक और दो तीन तक तो आपने नंबर दे दिए उनको, रैंक निकाल दी ना 3 नंबर तक। हाँ 4 और 5 के सेम रैंक आ गए। हाँ राइट, 1 2 3 को डिवाइड कर दिया ना, 3 के बाद 4 देना था, लेकिन 4 और 5 के दोनों के बराबर नंबर आ गए, तो आप दोनों को 4 4 नंबर नहीं देंगे, 5 5 नहीं देंगे। दोनों का क्या सिस्टम होगा, आप 4 और 5 के दोनों के बराबर में 4 और 5 को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, दो लोग हैं, हाफ हाफ दे देंगे, डिवाइड बाय 2, 4.5 0.5 दोनों को दे देंगे। You got my point? यस सर। एंड देन आगे आप 6 से शुरू करेंगे आप नेक्स्ट। 4 और 5 तो एग्जॉस्ट हो गया ना। हाँ यस सर। 4 + 5 दो लोगों की सेम स्कोर थे, स्कोर को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 4.5 4 को दे दिए, 4.5 5 को दे दिए, तो नेक्स्ट स्कोर जो आएगा आपका रैंक आएगा 6 नंबर आएगा, 5 खत्म हो चुका है। गॉट इट सर, मिला सर। अगर 3 लोगों के स्कोर हैं उनका सीरियल नंबर चेक करो, उनको जोड़ो और 3 से डिवाइड करके वो उनको बराबर दे दो आप। डन। इसको बोलते हैं यस टाई। सर यस सर। इसी दिस इज कॉल्ड द टाई। जब आप टाइड रैंक बोलते, TIED टाइड रैंक, राइट। सो टाइड रैंक में ऑटोमेटिकली स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस भी मेथड लगा सकते हैं और कैंडल स्टव मेथड भी लगा सकते हैं, हम दोनों लगा सकते हैं, दिस डिपेंड ऑन यू। कैंडल स्टव के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, राइट, वो भी आपका कैंडल स्टव जो है आपका -1 और +1 के बीच में आता है, उसका जो सेंटर होगा, मीडियन जो वैल्यू आएगी -1, अगर इसका क्वोटिनम निकालते -1 और +1 का एक हॉरिजॉन्टल क्वोटिनम निकालते तो सेंटर वैल्यू 0 आती है। 0 से -1 में कितना डिविएशन है टुवर्ड्स -1, एंड 0 से टुवर्ड्स +1 कितना डिविएशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन इस चीज से इंडिकेट होता है। 0 से माइनस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, स्कोर में -4 आ रहा है, फ्रॉम 0 to -1, राइट, तो वो आपका नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर आपका 0 to +1 में जा रहा है, दैट इज ए पॉजिटिवली कोरिलेटेड, राइट। सो डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द साइन ऑफ माइनस एंड प्लस दोनों से। द क्लोजर द वैल्यू इज टू -1 और +1, द स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप। -1 और +1 के जितनी नजदीक वैल्यू आएगी, जितनी मतलब 0 से दूर वैल्यू आएगी, राइट, 0 पे तो कोई कोरिलेशन नहीं आ रहा ना हमारा। 0 पे जितनी वैल्यूज आपके -1 और 1 के करीब जाती जाएंगी, उतना ज्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप होता जाएगा। एंड क्लोजर द वैल्यू टू द 0 इंडिकेटिंग द वीक रिलेशनशिप। 0 के नजदीक जितनी वैल्यू आएगी उतना वीक रिलेशन होगा, 0 से दूर वैल्यूज जाएंगी टुवर्ड्स -1 और +1, उतना हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। Am I right? Done? Yes, sir. It is very clear. Thank you. So this is Yes totally, sir, it's clear now. Thank you sir. this is totally practice based paper, practice based, पैड और ग्राफ कापर लेके बैठ जाओ, राइट। सर कैंडल टाउ का फॉर्मूला एक बार बताएंगे सर प्लीज। किसका? कैंडल टाउ का। कैंडल टाउ का फार्मूला आपकी बुक में दिया होगा, चेक करो आप, आपकी बुक में टॉपिक ही। ओके सर, ओके, थैंक यू। आपकी बुक में है, एंड इफ यू वांट आई कैन लेट यू नो कैंडल टाउ हम पेज 42 ब्लॉक 2 पेज 42। हाँ, दिया, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चला हूं। आपने सुबह गलत बोला मुझे कि हमारी बुक से डिफरेंट करा रहे हैं आप। आई एम सॉरी, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कंटेंट गिवन इन बुक, मैं उससे नहीं होता। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास, सर प्लीज एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर अगर हम जैसे हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें सर अगर हम जैसे एज है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जैसे आपने कहा था, और जो लर्निंग है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया,
तो फिर सर जो रैंक था वो भी 1 2 3 4 5 7 आ गया, और मतलब रैंक 2 भी 1 2 वो 7 वन आ टू गया, फाइव हाँ मतलब कॉन्टिन्यूसली 1 to 7 आएगा, तो फिर उनका कंटिन्यूस सर डिफरेंस। वही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक हाँ चीज जी और हो सकती है, ध्यान रखना। अगर एक सपोज स्पीड और टाइम का अगर आपने वो निकालना, कोरिलेशन निकालना स्पीड और टाइम का, स्पीड जी सर। जितनी ज्यादा होगी उसको आप नंबर 1 देंगे, टाइम जितना कम होगा उसको आप नंबर देंगे, उल्टा हो जी जाएगा सर, वहां पे। तो सर उनका डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो सर फिर 0 आ जाए सब जगह पे, तो 0 डिफरेंस आ गया। जैसे मैं क्या कर रही थी तो मेरा तो, जैसे जब डिफरेंस निकाला RX माइनस RY निकाला जो हमने, हाँ, तो फिर सर वो सब जगह तो 0 आ गया, जैसे 1 आपने माइनस 1 कैसे 0। किया, सुनो, पहले जो आपने एज लिखा है वो आपका लिख दिया 25 27 29 34 38 40 47 ऐसे लिख लिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है सर। सर लर्निंग भी इंक्रीजिंग इसी ऑर्डर तरह में, से लिख लिया। हाँ राइट। जी, और लर्निंग लिख लिया एज मैंने आपने डिसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर में। में लिखा है ना, तो जी आपने सर। जो जो ना वो गलत किया, जो लर्निंग है जो हाईएस्ट स्कोर लेने वाला है, लर्निंग और जो एज जी है, सर। उनमें दोनों में रिलेशन क्या है? सर वो ज्यादा लर्न करेगा, लर्निंग ज्यादा रहेगी ना उसकी। ये हाँ लिखा मैंने, ऐसे लिखा कि जो 25 एज का था वो 50 है, और जो लास्ट मेरा है नंबर 7 पर 47 एज का वो 22 है। हाँ मतलब हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लर्निंग को लिख लिया, हाँ तो हाँ, पूरा मतलब कॉन्टिन्यूस में ये लिखा मैंने आपको जैसे। एक एक आप स्टेटमेंट लिखेंगे। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया था कि आपने R1 और R2 कैसे निकालना है, पहली बार। दिस आई हैव जी नॉट सर। गिवन एनी स्टेटमेंट, R1 और R2 कैसे निकालना आपको, एक मैंने जस्ट आपने एक दिया था फॉर्मूला देने के लिए आपको। अब आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखिए आप। जी सर, जी सर लिख रहे हैं सर। इंटेलिजेंस टेस्ट एंड टाइम टेकर, सब्जेक्ट है नंबर 1 से लेके आप कितने 4 5 6 7 8 कितने लिख लो आप। एक हमारा एक्स वेरिएबल है इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर, और वाई वेरिएबल टाइम टेकन। एक टेस्ट है और एक टाइम टेकन, टेस्ट को करने के लिए टाइम है। एक्स वेरिएबल पे हमारा टेस्ट स्कोर है, और वाई वेरिएबल पे हमारे टाइम है। टेस्ट स्कोर में 185 सब्जेक्ट 1 का, और टाइम टेकन 110। लिख रहे हैं आप? जी सर लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं सर, हाँ, बताते उसके जाइए। बाद मैं पहले आपको इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर बता देता हूँ सीक्वेंस में। 185 का 203, फटाफट लिखिए। 188, 195, 176, 174, 158, 197, 176, 138, 126, 160, 151, 185, 185। अब इसके बाद टाइम टेकन लिखिए। 110 हो चुका था। 98, कॉरेस्पॉन्डिंग सामने लिखना, सीरियल नंबर 1 के सामने आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था, उसके सामने ऑटोमेटिकली टाइम स्कोर आ रहा है हर एक के सामने। 110, 98, 118, हमने 110 शुरू किया। सेकंड के स्कोर आया हमारा, टाइम टेकन है 98, थर्ड का 118, फोर्थ का 104, फिफ्थ का 112, उसके बाद 124, 119, 95, 94, 97, 110, 94, 126, 120, 118। क्लियर? सारी वैल्यूज लिख दी? जी सर लिख ली, हमने सब लिख ली। इसके बाद जो मैंने पहली वैल्यूज बताई थी बहुत सीक्वेंस ऑर्डर में बताई थी आपको, तो ऑटोमेटिकली उसका 0 आएगा ही आएगा, उसमें फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। नाउ दीज आर दी वैल्यूज गिवन इन रैंडम ऑर्डर। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है हमारे, इंटेलिजेंस भी और टाइम टेकन भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है हमारे। अब इसमें R1 और R2 निकालेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट का सबसे पहले R1 निकालेंगे। फर्स्ट स्कोर किसको देंगे आप चेक करिए। आप फर्स्ट नंबर 203 को, हाईएस्ट स्कोर 203 है ना,
जी सर। 1, उसके बाद 197 गिव 2, 195 3, 188 4, 4 के बाद 118 के बाद आपका 185 2 के पास है सर सर, 1 या 3 के पास है, 3 के पास है। हाँ, तो हमने कहां से शुरू किया था ये? कौन से सीरियल नंबर से शुरू किया? 185 कहां पे आया? 203 हाँ जी, 203 1 188 4 पे आया सर। R1 R2 R4, ये 5 और 6, 5 6 7 नंबर है सर इनके। 7 5 5 6 6 7 नंबर है ना, इनको जोड़ो। 5 6 7 18 हो गया ना? जी सर, डिवाइडेड बाय तीनों को 3। 6 6 नंबर दे दो, डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3 6, तीनों को 6 6 नंबर दे दो। जी सर। आप सर इस जब समझ में जाएगा आ गया, समझ में आ गया सर। आ गया जी। R1 आ गया, ऐसे R2 निकालेंगे आप, और फिर D निकालेंगे, फिर D स्क्वायर निकालेंगे, 0 कभी नहीं आएगा आपका। क्लियर? सर समझ Yes, में आ sir. गया बिल्कुल जी सर। अब ये फॉर्मूला तब करेंगे आप। हो गया? सर इसको निकालना उसी से है ना, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा बिल्कुल बिल्कुल डी बिल्कुल वही है, स्क्वायर वही बिल्कुल अपॉन M3 माइनस N। 100% वही है, डन, 100% वही जी है। सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। जी सर। सर सर, कल जो वाले लाल- क्वेश्चन, सर कल वाले क्वेश्चन तो रह गए सर, उसी वाले। सर प्लीज सर 2 मिनट। हाँ, फिर हम कल करेंगे, अब मैं कल करेंगे। सर सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरे भाई 10:12 हो गए, मैं कहीं खड़ा हूँ, आई एम नॉट एट राइट प्लेस, मैं कहीं रास्ते में रुक के आपकी क्लास ले रहा हूँ, गाड़ी में बैठ के। सर मुझे ठीक है सर, सॉरी सर। दे रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक। आप नोट कर लो, कल मुझे डिस्कस कर लेंगे फिर हम। जी डॉक्टर सर, साहब, आप लोग थैंक के यू साथ सर। ही रहेंगे अभी काफी लंबे समय तक, तो बहुत सारी चर्चाएं रहेंगी आप लोग के साथ, और क्योंकि समय की वचनबद्धताएं भी हैं, तो उनको भी हमें मद्देनजर रखना है। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका। थैंक यू। और थैंक यू। आप कोशिश करना कहीं पे मेरे साथ, कहीं व्हाट्सएप पे है, टेलीफोन पे, कोशिश करके हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे आपस में। सर आपका नंबर मिल सकता है? नंबर तो सर कर देंगे, अभी आपको वायरल कर देंगे सर, वायरल कर दो नंबर। अभी शेयर कर रहा हूँ सर। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। व्हाट्सएप वाला 9417882789 वाला सर। थैंक यू। थैंक यू सर।